सबको जोहार। आई एम सुमन किरो फ्रॉम सिमडेगा झारखंड। अब तक हमने हैलो अल्केन्स में हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है और ये कैसे बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन से और अल्कोहल से, इतना तक हमने पिछले क्लासों में देख लिया है। आज हम सीखेंगे दो मेथड्स। पहला मेथड है बायफिंकेल-स्टेन्स रिएक्शन। ये एक मेथड है क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन से आयोडो अल्केन बनाने का। इसमें क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को सोडियम या पोटासियम आयोडाइड के साथ असीटोन की उपस्थिति में हीट किया जाता है, तो क्लोरो या ब्रोमो अल्केन का कन्वर्शन आयोडो अल्केन में हो जाता है। चलिए इसी को लिख लेते हैं। व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन is heated with sodium iodide or potassium iodide in the presence of acetone, then an iodoalkane is formed. Iodoalkane is formed. This reaction is known as Finkel-Stein's reaction. Finkel-Stein's reaction। तो ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है या कंप्लीट द फॉलोइंग के रूप में यहाँ से सवाल आता है, या मल्टीपल चॉइस। ओके, एग्जाम्पल। इस रिएक्शन के एग्जाम्पल कोई भी क्लोरो अल्केन लीजिए। मान लिया हम लेते हैं क्लोरो इथेन प्लस NaI है, असीटोन। इसको हीट करेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी CH3CH2I प्लस NaCl। अगर यहाँ K लेंगे पोटासियम आयोडाइड तो उधर बनेगा पोटासियम क्लोराइड। ऐसे ही यदि आप लेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन प्लस, मान लिया यहाँ लेते हैं KI, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ओके असीटोन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो बन जाएगा CH3CHI CH3 plus KBr। Okay, so Finkel-Stein's reaction is a method of conversion of chloroalkane or bromoalkane into iodoalkane by heating chloro or bromoalkane with potassium iodide or sodium iodide in the presence of असीटोन। ओके, ठीक है, आप अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ सवाल दे रहा हूँ। CH3 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 CH2 Cl 1 chloro 2 dimethyl propane plus NaI acetone heat। ओके, CH3 CH3 Br CH3 plus Ki acetone heat। Okay, you have to complete these two reactions.
Okay, now let's move on to Huns-Dicker's reaction. Okay, Huns-Dicker's reaction is a method of preparation of bromoalkane from silver salt of carboxylic acid. Okay, so in this reaction, silver salt of carboxylic acid is refluxed with bromine in the presence of carbon tetrachloride, and as a result bromoalkane is formed. Okay, bromoalkane is formed. Okay, let's write this down. When silver salt of carboxylic acid is refluxed with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then a bromoalkane is formed. Bromoalkane is formed. Okay, this reaction is known as Huns-Dicker's reaction. Huns-Dicker's reaction. Okay, we can represent this reaction as RCOOAg plus Br2 CCl4 reflux. Then we get RBr plus CO2 plus AgBr. Okay, so this is silver salt of carboxylic acid. When we reflux this with bromine in the presence of CCl4, then we get a bromoalkane, and this bromoalkane, okay, has one carbon atom less than the starting silver salt of carboxylic acid. ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है. ओके, अब उदाहरण लिख देंगे. एग्जाम्पल CH3COOAg plus Br2 CCl4 reflux. So this is, ठीक है, जब सिल्वर सॉल्ट या एस्टर का नाम लिखते हैं तो ये वाला भाग का नाम पहले लिखते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, है ना, असीटिक एसिड. तो इक एसिड के बदले में एट, सिल्वर असीटेट. आईपैक नेम हो जाएगा सिल्वर इथेनोवेट. तब यहाँ बनेगा ब्रोमोमिथेन प्लस CO2 प्लस AgBr. तो एक ब्रोमीन ये CH3 के पास आएगा, दूसरा ब्रोमीन सिल्वर के पास. कोई भी एसिड का आप सिल्वर सॉल्ट ले सकते हैं. ओके, अगला मान लिया हम लेते हैं CH3 CH2 COOAg, ठीक है, सिल्वर प्रोपेनोवेट प्लस Br2 CCl4 reflux. Then we get CH3 CH2Br के ब्रोमोइथेन प्लस CO2 प्लस AgBr. Okay, any silver salt of any carboxylic acid you can take. Okay, I will give you one example, one exercise for you.
ओके, CH3 CH2 CH2 COOAG के सिल्वर ब्यूटेनोवेट प्लस Br2 CCl4 रिफ्लक्स। ओके, रिफ्लक्सिंग क्या होता है हम बता चुके हैं पहले के क्लासेस में। तो क्या बनेगा? ओके, आपको ये बनाना है। ओके, तो अगर आप चाहें तो इनका आंसर और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो these two are one of the important methods of preparation of alkyl halides. Okay, by Finkelstein's reaction we prepare iodoalkanes from chloro or bromoalkanes. By Hunts-Dicker's reaction we prepare bromoalkanes from silver salt of carboxylic acids. ठीक है, ठीक। अब ये जो दो टॉपिक्स हम अभी देखे, यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा पुराने क्वेश्चन से। ओके, जैसे 2018 में एक सवाल था, 2018 में एक सवाल था। क्या सवाल था? एकदम आसान सा सवाल था। CH3 CH2 Cl प्लस NaI असीटोन हीट CH3 CH2I plus NaCl. The reaction is, उसके बाद इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, Finkelstein's reaction, none of these, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ओके, कर लिए? ठीक है, सही आंसर है फिंकेलस्टेन्स रिएक्शन। ओके, तो ऐसा आसान आसान सवाल पूछा जाता है। ओके, फिर 2014 में था कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, बाय द वे वुर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वुर्ज रिएक्शन 11th में पढ़ चुके होंगे आप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। वैसा तो फिटिग रिएक्शन भी पढ़ चुके होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगीज, उसे पढ़े होंगे फिटिग रिएक्शन। एनीवे, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग में था CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI असीटोन हीट। ओके, तो क्या बनेगा? तो इतना सहज से और कितना सहज सवाल आएगा, फिर भी इसे लोग नहीं जानते हैं और केमिस्ट्री में एकदम धड़ाधड़ फेल होते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आराम से निकल जाइएगा।
ओके, तो सिंपल विस्थापन रिएक्शन है ना। प्रोपेन बनेगा, आयोडो प्रोपेन बनेगा। ओके, 1 आयोडो प्रोपेन प्लस NaCl, ठीक है, 1 आयोडो प्रोपेन या N प्रोपाइल आयोडाइड। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स यहीं पर समाप्त होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, सी यू, बाय।